class 10th. Today we will talk about the self-help groups for the poor. Look at these pictures. Can this person's approach to the bank for the credit? Are you found the conditions is there? Before moving to this scenario, let's revise little bit. What we have learned in the last few presentations, we have a two kind of the credit arrangements, that is the formal and informal. The example of the formal credit is the bank and the cooperative. Formal credit का जो example है वो बैंक और cooperative है. Informal the example money lender, employers, relatives, friends. The most important thing about the formal sector or the formal source of the credit is the term of credit. The term of credit that make is more favorable. Everybody love this one, this formal sector. Why they want? Because there is a low rate of the interest. What it means? If you take money borrowed from to the formal sector, you have to pay lesser interest in compare of the informal sector. So term of the credit है the low interest rate. If you are taking the 100 rupees, so it might be possible that you have to return 112 rupees after 1 year. But on the other hand, in the informal sector, if you take the 100 rupees borrowing from these institutions like the money lender and the employers, it vary upon to the different condition, but it may be 130 to 160 rupee return. So there is a low interest of the rate, easy payment conditions, there is installment, there is a time period. So the formal sector has this advantage. So what is the impact of this low interest rate and easy repayment? It help in the reproductions. So the farmer as well as the any entrepreneurs which it takes the formal source of the credit in borrowing, so his production become more cheaper since there is a low interest rates. उसका जो प्रोडक्शन होता है वो सस्ता होता है क्योंकि आपको कम पैसा देना है तो आपका जो प्रोडक्शन होगा सस्ता होगा. So definitely that increase the income, and that is the role of the credit. Credit in through the formal sector help in increasing the income. But on the other hand, the informal sector, you have a high interest rate, repayment condition is very hard, therefore there is a debt trap for always, and the production become harder. The cost of the production has increased because there is a difference between 30 to 40% of the interest. So that led to the more higher production cost. And what happened? But what is the advantage in the informal sector is that basically the borrower and the lender both know each other personally. There is no requirement of the documentations. Informal sector में जो उधार लेने वाला और देने वाला एक दूसरे को जानते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाना पड़ता, पड़ोस में जाके उधार जब चाहे आपको मिल जाता है. But here in the formal sector there is a problem, and that problem has created the serious issues for to the poor people. What you read the collaterals. What is the collateral? Collaterals का मतलब some sort of a security. While taking the loan, you have to deposit certain amount of the documents, and there is a documentations. आपको बहुत ज़्यादा documentation बैंक में जाने पड़ते हैं, अपने अलग अलग document देने पड़ते हैं. Unfortunately, poor household and to the poor people doesn't have the documentations, and then the bank not accessible to all. Everyone, we do not have the banks in India. Yes, nationalization of the bank done by the Indira Gandhi in the 1980s. All the private bank has nationalized. So bank has reached in the villages also. Even then, bank is not accessible to all. And poor people can't go to the bank due to these structural problem. The collateral documentations and inaccessibility of the bank is or a special structure of the bank. Poor people cannot go to the bank. So where they will go? If they will go to this informal sector, so definitely the interest rate is very high, and there is a possibility that their production would not increase. Somehow they will go under the debt trap. So there is a one alternative that called to the SHG, self-help group. What is this? Look, the biggest problem we found that there is a lack of documentation, there is a lack of collaterals, and therefore the poor people cannot approach to the formal sector. So the alternative mechanism which we will study about the self-help group. देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, जैसे हमने कहा था कि जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, और हमने पहले भी देखा था, अगर आपको याद होगा हमने इस डायग्राम में देखा था कि जितने ज़्यादा गरीब लोग हैं, ये डायग्राम क्यों आया था, जो पुअर हाउस होल्ड हैं और हाउस होल्ड विद द फ्यू एसेट्स हैं, वो लोग ज़्यादातर पिंक, यानी वो लोन कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं आपका ज़्यादातर लिंक जो पर्पल कलर है आपका, वो लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से. देखिए 85% इनफॉर्मल सेक्टर, 53% इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है. वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, बैंक नहीं जा पाते. तो इसलिए क्या होता है,
आपको याद होगा मेघा को आसानी से लोन मिल गया था, याद है आपको, याद है ना, मेघा को आसानी से मिला था, लेकिन जो रमा थी उसको एब्सेंस ऑफ द कोलेटरल वन ऑफ द रीजंस की उसको नहीं मिल पाया, तो उसने किससे उधार लिया, मनी लेंडर से लिया, मनी लेंडर ने विदाउट कोलेटरल उसको लोन दे दिया था, याद आ रहा है रमा की कहानी आपको। तो ऐसे केसेस में हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म क्रिएट किया रिसेंट ईयर, पीपल हैज ट्राई आउट सम न्यूअर वे टू प्रोवाइडिंग द लोन टू द पुअर, गरीबों को लोन देने के लिए। इसमें क्या किया, जो गांव के गरीब लोग हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, 15 से 20 लोगों का एक एसोसिएशन होता है, वो पड़ोसी लोग होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और वो अपनी इनकम जो होती है 1-2 साल तक जमा करते हैं, और जो उनकी इनकम होती है वो 25 से 100 रुपीज़ भी होती है, इस इनकम को क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक देखता है कि इनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी है, तो उस सिक्योरिटी के बेसिस पे फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे देता है। उस लोन को वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने ही मेंबर्स के बीच में अलग अलग पर्पसेस के लिए वो देते हैं। उसका रीपेमेंट कैसा होगा, रेसिड्यूल कैसा होगा, ये सारे गांव के लोग डिसाइड करते हैं, और ज़्यादातर भारत में महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है। मज़ेदार बात है कि भारत सरकार अपनी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट अपनी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू इनको सब्सिडीज़ देते हैं, जिससे कि इनको कम लोन देना पड़े और ये सेल्फ रिलायंट और एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और ये सारे डिसीजन गांव में एक मीटिंग्स में होते हैं। तो ये बैंकिंग से ज़्यादा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ये बैंकिंग का मैकेनिज्म नहीं होता, बल्कि यहाँ लोग आपस में मिलते हैं, आपस में जो अपने ग्रुप होते हैं उनके बारे में डिसीजन करते हैं। देखिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक डायग्राम है, दिखा रखा, व्हाट इज़ इट, ये एक इनफॉर्मल है ग्रुप्स होता है इसमें, ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, इसमें मेंबर होते हैं अलग अलग सिमिलर सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, महिलाएं हो सकती हैं, एक गांव के दलित हो सकते हैं, या गांव में रहने वाले जो लोग कैटल्स या लाइफ स्टॉक एनिमल को लेते हैं वो हो सकते हैं, वो लोग अपना फंड इकट्ठा करते हैं। इसका महत्वपूर्ण रोल है, ये पॉवर्टी एलिवेशन और इम्प्रूव सोशल स्टेटस करता है। ये लोग आपस में बैठते हैं, एनजीओज इसमें मदद करते हैं जो ये बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक आते हैं, गवर्नमेंट मदद करती है, क्योंकि ये पैसा बैंक के पास जाता है। बैंक जो इनकी पूलिंग सेविंग होती है, हर बंदा 25-25 या 100 रुपीज़ जो भी सबमिट कर रहा है, 10 से 25 लोगों का है, उसको बैंक में रखते हैं। जब ये 1 साल तक बैंक में रखते हैं तो बैंक को इन पे भरोसा हो जाता है, क्योंकि ये ग्रुप में काम कर रहे हैं। अगर कोई सदस्य कल को वापस नहीं देगा तो ये अपने आप ग्रुप मिलके काम करेगा। तो बैंक किसी इंडिविजुअल को लोन नहीं देता है, बल्कि बैंक उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देता है। तो इसमें ये काम करते हैं, ये इनिशियल मीटिंग्स होती हैं, इसमें ये सब आपस में बैठते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, लोन के अलावा ये याद दिलाते हैं जिसने उधार लिया कि आपको पैसा देना है, कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, और मज़ेदार बात है इसमें एक सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को भी डील कर रही हैं। जैसे महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो महिलाएं आपस में ये भी डिस्कस करती हैं, देख मेरा गांव में क्या प्रॉब्लम्स है, मेरा हस्बैंड ड्रिंक करके आते हैं तो हमें वायलेंस करते हैं। सो व्हाट हैपेंड थ्रू दिस मैकेनिज्म, उनका एक सोशियो डेवलपमेंट भी एक सारा इशूज़ होता है। तो इसमें गवर्नमेंट मदद करती है, यूनियन बजट में मुद्रा स्कीम से अगर आप देखेंगे तो इस तरह के गवर्नमेंट ने अलग अलग एडवांटेज भी हैं, लिमिटेशन भी हैं। एडवांटेज है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, डेमोक्रेसी आ रही है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन नुकसान से है कि कभी कभी एनजीओज़ की भूमिका या कुछ एक करप्शन के चार्जेज या गवर्नमेंट की स्कीम सही से न होने के, इस तरह के बहुत सारे इन पर आरोप लगे हैं। तो एक हम प्रेजेंटेशंस को देखते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक फाइनेंशियल कमेटी होती है, 10 से 15 लोकल वुमेन्स इसमें गाँव के मिलते हैं, और ये इंडिया में सेटअप किया गया है स्मॉल सेविंग वाले ग्रुप्स के बीच में। इसका मतलब है ऑल्सो नोन एज द म्यूचुअल हेल्प और सपोर्ट ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ द पीपल हु प्रोवाइड द म्यूचुअल सपोर्ट टू ईच अदर। तो आपस में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक मैकेनिज्म है। इस तरह से दिखा रखा है कि ग्रुप में ट्रस्ट बनाना, ये देखो कोई एनजीओज़ की शख्स है, आपस में मिलना, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंस करना, तो इनको आसान शर्तों पे उधार देना जिससे अपना छोटा छोटा काम कर सकें। महिलाएं क्या छोटा काम कर सकती हैं अपना, बहुत सारा हो सकता है, 10 से 15 लोग होते हैं, उसमें सेम सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स होता है उनका, मंथली मीटिंग करते हैं और वो इस तरह से एक सिस्टम्स करते हैं कि जिससे वो क्या कर सकें, अपने एक लोन का एक अरेंजमेंट कर सकें। It's not going ahead. I don't know what the problem is there.